टेस्ट थी ना आज, तो उसमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब क्या ही बताएं आपको, क्यों दे रहे हैं हम लोग ये टेस्ट, कितने बार उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर बार बार दें। हाँ, गुड आफ्टरनून। अकाउंट में कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये कमाल है, मतलब बढ़िया है। ये इमोजी ऑमलेट जैसे लगता है। सर पढ़ते भी हैं। टेस्ट सीरीज कब से है? जब से मुझे पता चल जाएगा तब से। An official announcement will be made on the group at least 3 days prior to the test series start. Alright, मतलब 3 दिन का समय मिलेगा पहले पेपर के लिए, और उसके बाद हर पेपर के लिए एक एक दिन का समय, कि अल्टरनेट डे रहेगा ना, काइंड ऑफ दैट। ओके, लेट्स कम टू द रिकंसिलिएशन। हाँ, तो हम लोग कहाँ तक डिस, हाँ, अकाउंट 1 अकाउंट 2 का हमको एडजस्टेड कैश बुक बनाना था, राइट? एंड देन we'll be able to go ahead. So if I'm going through adjusted cash book, of course we are talking about only account 1 and account 2. Instead of preparing the two separately, I am preparing a columnar adjusted cash book. All right. फिजू भैया बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। बेटा बाकी कुछ हो ना हो, कम से कम शरीर देख के तो समझ में आना चाहिए तुमको कि सामने कौन है। Yep. This is for account 1, this is account 2, this is account 1, this is account 2. On the debit side, 2 balance brought down. For account 1 there was a favorable balance, है ना? कितना था? 1,25,000. Correct? And for account 2 there is an overdraft, so therefore by balance carried, so brought down in account 2 1,11,250. Is it right? अब जरा सवाल पे वापस आते हैं। The bank has charged the interest on account 2 11,375 and credited interest on account 1 1250 were not recorded by accountant. Now these are the transactions which should have been recorded in the cash book or not, which we have not yet recorded. अब account 2 पे interest लगा
और अकाउंट 1 पे इंटरेस्ट मिला. अकाउंट 1 पे जो इंटरेस्ट मिला उसके लिए योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम और नॉट. और जो अकाउंट 2 पे इंटरेस्ट लगा, फॉर दैट योर एंट्री विल बी interest expense account debit to account 2 or not. So in the cash book on to the debit side, to interest income in account 1 1250, and at the same time on the credit side by interest expense 11,375. Is it right? Then 12,500 drawn on December 10 from account 1 was recorded in the books of account 2. आपने चेक इशू किया था अकाउंट 1 में से, तो आपने एंट्री करनी चाहिए थी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू अकाउंट 1, मतलब अकाउंट 1 के क्रेडिट साइड में लिखना था, के जगह अकाउंट 2 में लिख दिया. तो अब अकाउंट 2 का क्रेडिट कैंसिल करना पड़ेगा और अकाउंट 1 में क्रेडिट करना पड़ेगा या नहीं. सो एंट्री विल बी रेक्टिफाइंग एंट्री अकाउंट 2 डेबिट टू अकाउंट 1 रुपीज 12,500. इज इट पॉइंट राइट? सो अकाउंट 2 ऑन द डेबिट साइड टू अकाउंट what? Wrong credit 12,500 in the column of account 2 on the debit side, whereas on the credit side by account 2 for wrong credit in account 1 column rupees 12,500. Am I right? Bank charges of 150 and 1125 on account 1 and 2 respectively are not recorded in the cash book. अब ये not recorded है वापस से. Your entry should be bank charges account debit to respective account or not. So in my cash book on the credit side by bank charges in account 1 column 150, in account 2 column 1125. Is it right? A deposit of 17,500 in account 1 was wrongly entered in account 2 in the books. आपने एंट्री करनी चाहिए थी बैंक अकाउंट 1 अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट रुपीज 17,500 की जगह आपने कर दिया अकाउंट 2 डेबिट टू कस्टमर अकाउंट रुपीज 17,500. अब अकाउंट 2 का डेबिट कैंसिल करना पड़ेगा और अकाउंट 1 में डेबिट देना पड़ेगा या नहीं. So rectifying entry will be account 1 debit to account 2. Correct है? So in my cash book on to the debit side to account 2 for wrong debit rupees 17,500. Are we going good? And then on the credit side by account 1 for the wrong debit, in which column? Account 2 column 17,500. Am I fine? Two checks 12,500 and 13,750 deposited in account 1 but wrongly entered in account 2 got dishonored, were reversed in account 2. रिकॉर्ड करके रिवर्स कर दिया ना, तो उसे हमें वापस से रेक्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन रिवर्स्ड एंड एनीवेज द चेक्स आर डिसऑनर्ड. हाँ, ये अगर डिसऑनर्ड नहीं हुए होते देन वी वर सपोज टू गेट इट रेक्टिफाइड. करेक्ट? नाउ checks issued of rupees 1,50,000 and 15,000 were not presented, checks deposited but not created. These are no more the reason of adjusted cash book. Those will keep coming in the reconciliation statements or not. So in my adjusted cash book, the closing balances of the two accounts on the credit side by balance carried down
for account 1 comes to 1 lakh, sorry, 31,100, and on to the debit side 2 balance carried down, क्योंकि account 2 में overdraft continue हो रहा है. In account 2 column 1 lakh 28,750. Is it right? Hi na. After this, if I am doing the reconciliation, I will start with what? 1,25,000 or 131,100? 131,100. Once the adjusted cash book is prepared, the reconciliation is done using the closing balance of adjusted cash book and not the opening balance. Point number 1. Point number 2, after preparing the adjusted cash book, the reasons for difference appearing in reconciliation statement will be only 3. Checks issued, checks deposited, and errors in passbook. Am I right? So, for account 1, if we are doing the reconciliation, balance as per cash book adjusted rupees 1,31,100, correct? Add checks issued but not presented. How much? 1 lakh, sorry, only 15,000 ना. account 1 की बात कर रहे हैं हम लोग. 1,50,000. 1,50,000 and less checks deposited but not credited, 1,25,000. Is it point right? Accordingly, balance as per passbook 100 was the same answer. Yes or no? And if I am doing it for account 2, starting is overdraft as per cash book. Of course, the adjusted one only or not? How much is it? 128,750. Not the one which is provided to us, but the one which we have adjusted. Matlab closing balance of adjusted cash book, that is 1,28,750. Now add checks deposited. ये मैं reconciliation directly कर रहा हूं. Deposited but not credited. How much is it? 1,17,500 and less checks issued but not presented, 15,000. Accordingly, overdraft as per passbook or bank statement comes to 1 lakh 2,31,240.
250। 125 कैसे आया बेटा? 17,500 लिया तूने एक 17,500 की जगह से 1-1 लाख रुपए का फर्क करेगा तू डायरेक्ट। कमाल है कि 11,750 लिया तूने, नहीं 11,750 लिया तूने। 1,25 आया था ना तेरा आंसर? हाँ 11,750 लिया तूने, चेक कर। 31,600 हाँ बराबर है। 11,750 जीरो गिराया तूने। 80 में से जीरो गिरा तो कितना होता है मालूम है क्या? 80 ऑन 100 ऐसा लिखने के बजाय अगर वो 80 में से जीरो गिर जाए तो सर आईसीआई कैलकुलेटर थोड़ी यूज करती है, आईसी के पास तो सॉफ्टवेयर है। समझा क्या? ओ ऑनलाइन मिले बेचारे बड़े सतर्क बैठते हैं तुम्हारे क्लास वाले ऑनलाइन। उनको भी समझ में आ रहा है अपन पहली बार ही पढ़ाई कर रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Now till now what has happened is you have already been given the reasons for difference. But if at all you are been given the cash book and the passbook and you have to identify, you have to do the reconciliation. There are two situations. As what? Cash book and passbook of same month. If this is the case, जिस मंथ का कैश बुक है उसी मंथ का पासबुक भी दिया हुआ है. If this is the case, in such situation, closing balance of cash book is reconciled with closing balance of पासबुक. जो क्लोजिंग बैलेंस आपके कैश बुक का है वही क्लोजिंग बैलेंस पासबुक में होना चाहिए, वो नहीं है इसीलिए रिकंसिलिएशन कर रहे हैं. सो यू आर गोइंग टू डू द रिकंसिलिएशन ऑफ व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस of cash book with the passbook. Now in this case starting point can be any. Starting point can be either of the balances. आप कैश बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो और पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते हो. If you are starting with cash book, your ending balance should be equal to closing balance of passbook. If you are starting with passbook, your ending balance should be the closing balance of cash book. मतलब क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, तुमको सिर्फ टैली करना है. और टैली करने के लिए जुगाड़ तो हम लोग सारे तरीके कर सकते हैं, नहीं? हाँ. डेबिट्स ऑफ कैश बुक are compared with deposits of passbook. क्योंकि सारे डिपॉजिट जो होते हैं हम लोग कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते हैं, नहीं? Therefore डेबिट्स ऑफ कैश बुक आर कंपेयर्ड विथ डिपॉजिट्स ऑफ पासबुक. मतलब पासबुक का क्रेडिट या डिपॉजिट साइड विल बी कंपेयर्ड विथ कैश बुक का डेबिट या डिपॉजिट साइड. Credits in cash book of cash book are compared with debits or withdrawals
of passbook. Correct hai? Now when you do the comparison, you find that there are the items in cash book as well as passbook, which means what? आपने भी एंट्री कर दी और बैंक ने भी एंट्री कर दी. So those are not the reasons for difference. आपने एंट्री करी पर बैंक ने अब तक के एंट्री नहीं की. In that case it is the reason for difference or not? आप बैंक ने एंट्री कर दी पर आपने अब तक के नहीं की, is also the reason for difference or not? So when you are doing the reconciliation using the cash book and passbook, in that case only the uncommon items, अनकॉमन मतलब क्या? कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं, पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज द अनकॉमन आइटम्स. ओनली अनकॉमन आइटम्स आर द रीजंस for difference, and those items will be used for the purpose of reconciliation, to be considered for reconciliation. मान लो मैंने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक पे, मैंने मेरी कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया होगा, कैश बुक के डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर बैंक में अब तक के वो क्रेडिट नहीं हुआ क्योंकि बैंक को अब तक के उसके अगेंस्ट पैसा नहीं मिला. तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है पर बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बैंक को अब तक के क्रेडिट नहीं मिला. सो इट इज नथिंग बट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और नॉट. सिमिलरली मैंने अगर चेक इश्यू कर दिए तो मैं तो रिकॉर्ड कर दूंगा इमीडिएटली. जब मैंने चेक इश्यू किया तभी रिकॉर्ड कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया बैंक को इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर बैंक ने उसके अगेंस्ट अब तक के पेमेंट नहीं किया, तो बैंक ने अब तक मुझे डेबिट नहीं किया. तो मेरे कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं है. सो इट इज नथिंग बट चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. सो दैट विल बिकम अ रिकंसिलिएशन डिफरेंस और नॉट. सिमिलरली बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दिए, बैंक तो पासबुक में डेबिट कर देगा या नहीं, पर मैंने अब तक के कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी. So it is nothing but bank charges debited by bank not recorded in cash book. Are you able to understand this? बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, पासबुक में क्रेडिट कर देगा बैंक, पर मैंने अब तक के रिकॉर्ड नहीं किया. So these are nothing but what we can consider as what? The reasons for difference. And those reasons will be using for the purpose of reconciliation. Is it point right? आदित्य समझाएगा तेरे को अब? ये हो गई बात जब आपके पास कैश बुक और पासबुक सेम पीरियड से रिलेटेड हो. बट देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर कैश बुक इज गिवन फॉर वन पीरियड एंड पासबुक इज गिवन फॉर सब्सीक्वेंट पीरियड. अगर ऐसा हो, कैश बुक ऑफ वन पीरियड एंड पासबुक ऑफ सब्सीक्वेंट पीरियड, in that case you do not do the reconciliation of closing balance. पासबुक का opening balance is nothing but the closing balance of previous period or not. अगर तुमको मार्च का कैश बुक और अप्रैल का पासबुक दिया गया है, तो मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस था will become the opening balance of April or not. So in such case, we do not do the reconciliation of closing balance of cash book with closing balance of passbook. Instead, we'll do what? Reconciliation of closing balance of cash book with opening balance of passbook. Point number 1. Point number 2, comparison वैसे ही होगा. Debits will be compared with deposits. Credits will be compared with withdrawals. वो कंपैरिजन हमारा बदलने वाला नहीं है. फर्क कहां पड़ेगा? अब तक क्या बोला था मैंने? ओनली अनकॉमन आइटम्स आर द रीजन फॉर डिफरेंस और नॉट. पर जब आप रिवर्स रिकंसिलिएशन करते हो, सब्सिक्वेंट मंथ और करंट मंथ का रिकंसिलिएशन करते हो, तो ओनली कॉमन आइटम्स. मैंने मार्च में चेक इशू किया था, अप्रैल में मेरे अकाउंट में डेबिट हुआ, मतलब 31 मार्च को पेंडिंग था या नहीं?
मैंने मार्च में चेक डिपॉजिट करवाया था पर बैंक में अप्रैल में रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब 31 मार्च को बैलेंस था या नहीं? सो इन दैट केस ओनली द कॉमन आइटम्स बिकम द रीजन फॉर डिफरेंस। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है? इसीलिए मैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक आई विल डू द रिकंसिलिएशन विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक, राइट ऑन द पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग, कैश बुक ऑफ 1 month and the passbook of subsequent month. Cash book of 1 month and the passbook of subsequent month. Next line means, suppose the cash book is given for March, passbook is given for April. Suppose the cash book is given for March, passbook is given for April. Next point. In this case, the closing balance of cash book, the closing balance of cash book will be compared, will be reconciled, not compared, will be reconciled with the opening balance of passbook, with opening balance of passbook into bracket, because closing balance of one period becomes closing balance of one period becomes the opening balance of another period. Closing balance of one period becomes the opening balance of another period. Next point. Comparison of debits and credits. Comparison of debits and credits will be same as above. Will be same as above. मतलब debit side of cash book will be compared with deposit side or the credit side of passbook. Credit side of cash book will be compared with withdrawal side or debit side of passbook. That comparison is going to remain same. Next point. Only the common items, only the common items appearing in cash book as well as passbook, appearing in cash book as well as passbook will be the reasons for difference, will be the reasons for difference, comma, and hence considered for reconciliation. Considered for reconciliation. तो इसका मतलब यह हुआ, जब भी आपको कैश बुक और पासबुक दोनों दिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन, सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है? वेदर दोज आर ऑफ द सेम मंथ और द डिफरेंट मंथ्स. अगर सेम मंथ है तो क्लोजिंग क्लोजिंग, अगर डिफरेंट मंथ्स हैं तो क्लोजिंग ओपनिंग. सेम मंथ है
तो अनकॉमन आइटम्स, सब्सिक्वेंट मंथ है तो कॉमन आइटम्स. इज इट पॉइंट राइट? लेट्स कम टू द एग्जाम्पल. Based on the following extract from the cash book and passbook for the month of January 2006, prepare the bank reconciliation statement as on 31st of Jan 2006. You have been given cash book, to cash, to Ram, to Sham, to Krishna, to bill of exchange 1900, discount 100, to balance carried down, by balance brought down. By balance brought down मतलब overdraft है नहीं. By cash, by Bharat, by Charat. Passbook, to balance brought down, by cash, by Sham, by Krishna. To Krishna's check dishonored. By bills of exchange dishonored. Sorry, discounted. Two bills of exchange dishonored. Oh bhai. Cash, Bharat, bank charges, life insurance premium, dividend collected. So there are the transactions which are given related to the cash book. There are the transactions which are given related to passbook. What we are supposed to do is we have to do the reconciliation of this closing balance of 2,900 with this closing balance of 4,570. Are you able to understand this? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये वाला डेबिट साइड जो है वो इन डिपॉजिट्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और ये जो क्रेडिट साइड में आइटम्स है इनको मुझे विड्रॉल्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा नहीं. और कंपैरिजन करने के बाद जो मुझे अनकॉमन आइटम मिलेंगे उतने ही मेरे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगे. यस और नो? सो लेट्स ऑब्जर्व इट. द वेरी फर्स्ट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,500. इज इट देयर इन द पासबुक ऑल्सो? So opening balance of cash book as well as passbook is also same or not? ये अगर different होता तो we would have put even that difference into the reconciliation item. Difference of opening balance would also come in the reconciliation statement. All right? Now credit side में 300 दिया हुआ है. Is it there in the passbook? By cash 300. कैश को क्रेडिट किया है, सॉरी बैंक को क्रेडिट किया है, मतलब पासबुक के विड्रॉल साइड में आएगा या नहीं? हाँ, तुम ऊपर वाले 300 के साथ कंफ्यूज कर रहे थे. विड्रॉल साइड, क्रेडिट साइड हैज टू बी कंपेयर्ड. डिपॉजिट साइड, डेबिट साइड हैज टू बी कंपेयर्ड. हाँ है ना? बाय भरत 1350, इज इट देयर? टू भरत सिर्फ 500 रुपए कहां से आ गया? सॉरी, हाँ वो ठीक है, बट इट डजंट कम ऑन द सेम डेट ना. 2006 की बात कर रहे हैं, तब तो एनईएफटी आरटीजीएस भी नहीं था. कंसिडरिंग द टाइपो एरर, राइट? सो भरत के 500 रुपए यहां पे रिफ्लेक्ट हो गए. ये सुनो. देन 1350, इज इट रिफ्लेक्टेड? आंसर इज नो. सो वी हैव टू इग्नोर इट और नॉट फॉर द टाइम बिंग. कब तक? जब तक हम लोग रिकंसिलिएशन नहीं कर रहे तब तक. देन ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड में आपके पास टू कैश 300 रुपए. इज इट देयर इन द पासबुक? Yes, so it will be remaining, it will not remain into the reconciliation. To Ram 1300, is it there? No, so ignore it for the time being. To Sham 250, yes, it is there. To Krishna 500, is it there? Yes. To bill of exchange 1900, is it there? Yes. 2000 और 100, 2000 का क्रेडिट और 100 रुपए का डेबिट, इफेक्टिवली 1900 रुपए का डेबिट हुआ है नहीं. सो दैट इज देयर. टू बैलेंस कैरिड डाउन 2900 रुपए, इज इट देयर? ऑफ कोर्स नॉट. उसी को रिकंसाइल करना है ना? हाँ. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, देयर इज दिस अमाउंट ऑफ 1300 which is there in your passbook, sorry, cash book, but not in passbook. So this is nothing but
uncollected check or not? Are you able to understand this? Then on the credit side there is this 1350 which is there in your cash book but not in the passbook. So this is nothing but what? Unpresented checks. Yes or no? Then 500 check dishonored, 2000 bill of exchange dishonored. These are what? Dishonor of instruments not recorded in cash book. Check dishonored but not recorded in cash book. Bill of exchange dishonored but not recorded in cash book. Am I going right? Are haan ya na? And then if you observe it further, there is this 20 and 250 paid by bank but not recorded in cash book. So these four are not recorded in cash book. Yes or no? And the last one, that is dividend collected by bank. Dividend and interest collected by bank but not recorded in cash book. Is the point right? Similar kind of transactions. तो पहले क्या करना पड़ेगा? जब भी हमें कैश बुक पासबुक दिया रहेगा, पहले हमें रीजंस फॉर डिफरेंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे बाय डूइंग द कंपैरिजन. और रीजंस फॉर डिफरेंस एक बार हमें मिल जाए तो उसके बाद विल बी एबल टू डू द रिकंसिलिएशन और नॉट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? चलो लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्या टेम्परेचर कम करूं? नहीं नहीं नहीं, हम पूरा लाइट बिल भरते हैं, हम चालू रखेंगे. तू भी पहन क्या? ठीक है, मैं कुछ नहीं कर, मेरे पास कुछ नहीं इधर. ये कोई कंबल दो रहे उसको. सच में दे रहे? फैन बंद कर रहा है. फैन बना रहे, फैन बैन मत कर. हाँ यस, कुछ नहीं था, टाइम पास था. लिख बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ईदर द कैश बुक और द पासबुक. कहां से स्टार्ट करना है? कैश बुक. जो पासबुक से स्टार्ट कर रहा है वो जो मैं प्लस बोलूं उसको माइनस में लिखना बस. हाँ चलो, राइट डाउन. सीरियल नंबर 1, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. राइट डाउन. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 2900 2900. Now you have deposited a check which is not yet been credited. एक एक करके आएंगे अब. Check deposit CBOD, PBOD, ODOD. You have deposited the check means you have decreased the overdraft or not? Has the bank decreased it? So CB to PB add 2900. So add check deposited but not credited by bank. Check deposited but not credited by bank 1300 in the inner amount column. Next, check issued but not presented 1350 रुपए. CBOD, PBOD, ODOD. You have issued the check, so you have increased the overdraft. Has the bank increased it? So CB to PB less 1350. So in the less part, number 1, checks issued but not presented. Checks issued but not presented 1350 in the inner amount column.
बराबर है क्या? नेक्स्ट, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. यू शुड हैव मेड द एंट्रीज फॉर डिसऑनर और नॉट, पर तुमने अब तक के वो डिसऑनर के एंट्रीज नहीं की है. सो इन दिस केस राइट डाउन सीबीओडी. अच्छा सॉरी, पहले कंपैरिजन तो करें. सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी. बैंक ने तुम्हारा ओडी बढ़ा दिया पर तुमने अब तक के ओडी नहीं बढ़ाया. सो सीबी टू पीबी, एड द टू आइटम्स और नॉट. राइट डाउन चेक एंड बिल. चेक एंड बिल, सर चेक एंड जिल होता है ना, चेक एंड बिल थोड़ी होता है. चेक एंड बिल वेंट ऑन द हिल and both got dishonored. आगे क्या हुआ? जैक एंड जिल में और क्या? जैक एंड जिल वेंट ऑन द हिल, जैक फेल डाउन. नहीं नहीं, वो तो रिंगा रिंगा रोजेस में होता है. कहीं पे भी कुछ भी मिक्स कर रहे हो. कमाल है. अच्छा था हम लोग हिंदी मीडियम में थे, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया हमारे लिए. से वही सेमी इंग्लिश. हाँ मतलब ये सब चीजों का संबंध है हमारे लिए. कमल उठ, कमल घर चल. हाँ, दैट वाज द गेम, दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग फॉर अस. है जी. अच्छा, तुम इतनी पोएम सुनते हो, वो शायद पिछली बैच में बताया था मैंने, वो पोएम है ना रिंगा रिंगा रोजेस. रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हशा हुशा वी ऑल फॉल डाउन. इसके पीछे ना स्टोरी है. इट इज नॉट अ काइंड ऑफ पोएम एज सच. इट इज एन इंस्ट्रक्शन. व्हेन देयर वाज द सिचुएशन ऑफ प्लेग हुआ था ना, तो एट दैट टाइम everyone was expected to keep the medicine of that plague in the pocket, and those were called as poses. And it was said ringa ringa roses, where whenever you keep on moving from one place to another, pocket full of poses, you keep the poses with you always, because hasha husha, if you find anyone falling down, then in that case you have to give the doses. If you don't give it, we all fall down. That is the story behind that. तो ये मतलब ऑब्वियसली, मतलब ये कहानी हम लोग पोएम्स इतनी सुनी, हम तो खेलते हैं उस पे यार, रिंगा रिंगा रोजेस पे. रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हशा हुशा वी ऑल फॉल डाउन. मजा आता है. अरे गिर गए, उस समय पे लोग मर रहे थे. ऑन दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वाज मेड, इंस्ट्रक्शन. एनीवेज, Jack fell down, he get the crown. They climb the wall ऐसे. जाने दो यार, लिखो तुम. हाँ, check and bill dishonored but not recorded in cash book. Dishonored but not reversed or recorded in cash book. हाँ मैडम, आपको बहुत सारी चीजें पहली बार पता चल रही हैं यहाँ पे, डोंट वरी. यस, 2500, बिकॉज वी आर राइटिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर. यू कैन राइट इट सेपरेटली ऑल्सो. चेक का अमाउंट अलग से लिखो, बिल का अमाउंट अलग से लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस. बैंक ने डेबिट कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया. सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी. बैंक ने ओडी बढ़ा दी, हमने नहीं बढ़ाई. सीबीडी पीबी, एड लिखो. बैंक चार्जेस रिफ्लेक्टेड इन पासबुक ओनली. बैंक चार्जेस रिफ्लेक्टेड इन पासबुक ओनली. इनर अमाउंट कॉलम 20. एंड लास्ट वन, इंश्योरेंस प्रीमियम. वो भी तो आईडी होगा ना. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक. Insurance premium paid by bank, not recorded in cash book. Rupees 250. Next one,
Dividend collected by bank, not recorded in cash book, will be subtracted or not? So in the less part. क्यों? CBOD PBOD बैंक ने कलेक्ट कर लिया, बैंक ने आपका ओडी कम कर दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, CB to PB less. Dividend and interest collected, not shown in cash book. सर पुराना जमाना अच्छा था, अपने टाइम पे तो गो कोरोना गो था, सिर्फ गो कोरोना गो करुणा गो करुणा गो गो. Yes. 1050. All done? Find out the overdraft as per passbook. है जी? हो ही नहीं सकता. बेटा जब मेरे पास क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है तो वो अलग कैसे आ सकता है? मैं ट्रायल बैलेंस के बलबूते पे बैलेंस शीट का टोटल बताता हूं, तू मेरा आंसर गलत कर रहा है यहां पे. 457 ऑफ कोर्स उतना ही आना चाहिए. इनफैक्ट ऐसी ही कहानी है अप्रैल फूल्स डे की भी. वो जो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे कहते हैं ना, इट इज एक्चुअली द अप्रैल फूल्स डे. पागल बनाने वाला दिन नहीं है. अर्लियर we used to follow, like the Englishmans, they used to follow the Julian calendar, and the Julian calendar was coinciding with our Hindu calendar, जो चैत्र फगुन वगैरह होता है ना, kind of that. था जो भी है, मेरे को याद नहीं है. चैत्र वैशाख मेष ऐसा कुछ तो होता है. चैत्र वैशाख मेष चैत ज्येष्ठ आषाढ़. अच्छा वो एकादशी वाला, हाँ एकादशी दुप्पट खाशी. श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिकी. अच्छा वो कार्तिक की शादी करते हैं उसमें. देन कार्तिक मार्गशीर्ष. कार्तिक की बात डायरेक्ट मार्गशीर्ष. देन पौष, हाँ पौष का महीना होता है. माघ फल्गुन वो होली वाला, हाँ फागुन का महीना. हाँ चलो ठीक है, आगे आप याद नहीं रहेगा वो बात अलग है. पर तो ये जो भी है, दिस वाज सिमिलर टू दैट जूलियन कैलेंडर. तो हुआ यूं कि उस टाइम का जो मोनार्की चल रहा था, they decided now we will be shifting from the Julian calendar to the Georgian calendar. Georgian calendar would start from 1st of January and Julian calendar would start from 1st of April. लोगों ने रेजिस्ट किया कि हम लोग जूलियन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, वी आर कंफर्टेबल विद दैट. ह्यूमन बीइंग, यू नो, वी कीप ऑन डिमांडिंग फॉर द चेंज एंड व्हेन द चेंज कम वी रेजिस्ट इट. दैट इज हाउ इट हैपेंस. मतलब हम लोग घर वालों को दिन रात बोलते रहते हैं हमको कहीं बाहर ले जाओ, हमको कहीं बाहर ले जाओ, और जिस दिन वो बोलते हैं ना आज बाहर जाना है, क्यों? दैट इज हाउ इट हैपेंस. इट्स वेरी स्टैंडर्ड ह्यूमन नेचर, यू नो. तो इन्होंने रेजिस्ट किया दैट वी विल नॉट फॉलो दैट जॉर्जियन कैलेंडर, वी आर हैप्पी विथ आवर जूलियन कैलेंडर, विल कंटिन्यू डूइंग दैट. इट ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स विद दैट चैत्र, द फर्स्ट मंथ. नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग वो ग्रह तारे देख के डिसाइड करते हैं मंथ कितना है, और इसीलिए हमारे हिंदू कैलेंडर में हर 4 साल में एक बार अधिक मास होता है. वो अधिक मास इज मैचिंग मंथ, क्योंकि जो हमारा ईयर होता है हिंदू कैलेंडर, इन दैट हिंदू कैलेंडर इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम इट विल बी 365 डेज, इट कैन बी लेस देन दैट. और वो उसको मैच करते करते वो जो हर साल के 7-7 दिन जाते हैं ना, उसको मैच करने के लिए एवरी 4th ईयर वी हैव दैट अधिक मास इन विच वी मैच दैट 28 डेज, जो शॉर्टफॉल होता है हमारा. सर ये कहाँ, मतलब क्यों इतनी सारी कहानियां कहां से बना के लाते हो आप? तो हुआ यूं कि इन्होंने रेजिस्ट किया, नहीं नहीं हम लोग हमारा जूलियन कैलेंडर फॉलो करेंगे. द देन किंग brought a dictum that everyone is expected to follow
the Georgian calendar that will be starting from 1st of January, any and everyone who does not follow the Georgian calendar would still follow the 1st April as the Julian calendar, they will be called as fool. And that's why the 1st April is considered as the April Fool's Day. Right? It is not any concept related to कि पहली अप्रैल को लोगों को पागल बनाना होता है. उस साल में डिक्लेयर किया गया था कि जो 1st अप्रैल फॉलो कर रहा है वो पागल है, क्योंकि वो बादशाह तभी गया था, वो पागल है पागल है पागल है पागल है. Anyways, and one more thing, paid leaves. ये जो पेड लीव्स की कंसेप्ट है ना, ये एक्चुअल नहीं थी. अर्लियर नो वन वॉज गिवन द लीव विथ पे, कि तुम छुट्टी भी मनाओ और पैसा भी लो. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ दैट काइंड. व्हेन दिस ट्रांजिशन वाज हैपनिंग फ्रॉम द जूलियन टू द जॉर्जियन कैलेंडर, द डेट इट वाज डिसाइडेड, on that day it was found that there are still 11 days remaining in the month of September. तो उन्होंने उस साल के सितंबर मंथ में से 11 दिन डिलीट किए थे. Still the employees were paid for the full month. So they were paid for 11 days of leave, and from there came the concept of paid leaves. Right? Of course, paid होंगे तो उस पे पत्ते होंगे ही ना. Paid leaves, you know. So, let's come ahead. Sir, I thought you have also done the course of astrology. नहीं भाई, नहीं. सिर्फ ऐसा है कि तुम रील्स फॉलो करते हो, मैं स्टोरीज फॉलो करता हूं. That's the difference. अच्छा, ये मस्त क्वेश्चन दिख रहा है. The bank passbook ऑफ अकाउंट नंबर 5, 6, 7, 8, क्या बात है, आप मिसेस रानी. अच्छा, मैंने जूलियन जॉर्जियन के बारे में क्या बात की, रानी आ गई एकदम से. हमारे किंगडम के बारे में बात चल रही है. शोड एन ओवरड्राफ्ट, इसीलिए ओवरड्राफ्ट है. किंगडम 33,575 on 31st of March 2018. On going through the passbook, the accountant found the following. The overdraft is given as per the passbook and not the cash book. Check of 1,080 credited in passbook on 28th of March being dishonored is debited again in the passbook on 1st of April. There was no entry in the cash book. Bankers had credited. अच्छा है क्वेश्चन, सॉल्व करो. चलो स्टार्ट अभी के अभी. Humpty Dumpty sat on a wall. कर ना बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व कर. बेटा जिस तरह की तू बातें कर रहा है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि तू एक जगह बैठा है, तेरी आत्मा कहीं और बैठी है. सोल चेक, उसका नाम है यूट्यूब पे, सोल चेक 33. तो कम से कम जब ऑफिशियल ग्रुप्स पे आते हो तुम लोग, वहां तो कम से कम डाल देना चाहिए ना सही वाला नाम क्या है तुम्हारा. सर आप हिंदू है ना, ये क्या क्वेश्चन है भाई, कमाल है यार. मैं इंडियन हूं. हाँ जी, हाँ तो मतलब तूने ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस के साथ कंपेयर किया ना, तो तेरा आंसर गलत ही आएगा ना. अद्भुत, कैसे सही आया. दिखा आंसर भेज. हाँ तुम लोग सॉल्व करो, भेजा हुआ ना तुम्हारे पास.
सर मोबाइल में डेटा खर्च होता है, उसका सदुपयोग कहीं और करना है हमको। भाई साहब 2500 रुपए तो तुमने कंसिडर ही नहीं किए, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। तू जुगाड़ से सही करके आया इसको। कहां कैश बुक में दिया है? हाँ तुम सॉल्व करो, सॉल्व करो। हाँ इधर जगह दो उसको थोड़ी सी। हाँ तुम सॉल्व करो, सॉल्व करो, मजे मत लो। हाँ बोल, इधर आ जा, उनको बैठने दे। हाँ पहले डिपॉजिट किया था लेकिन क्रेडिट नहीं किया था सर उसका, और जो बिल डिसऑनर हुआ है ना, चेक और बिल डिसऑनर का एंट्री किधर है तेरे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, वो बता। पकड़ बुक। पहले जो नहीं क्या डिस्काउंट किया था ना, इधर क्या हमको जो पैसे मिले थे वो, डिस्काउंटिंग तक का कोई इशू ही नहीं है, इशू डिसऑनर का है। हाँ 2000 का डिसऑनर हुआ, हाँ और ये 500 रुपए का भी डिसऑनर हुआ है। अरे मैंने वो जो गोल गोल किए थे वो क्या थे फिर? 500 में नहीं, इधर भी दिखाया। You have not considered those 2500, that's why your answer is coincidentally correct. हाँ 500 में डिफरेंस होता है। हाँ कोइंसिडेंटली करेक्ट है, एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, आंसर गलत ही है तेरा। इधर ही बैठ जा अब। तुम सब पढ़ाई करने लग गए, सही है। कौन सा वाला स्टेटमेंट कर रहा है? पहला है ना? कैसे? ठीक है। ये सब लिखता है तू? सब लिखता है? अरे
डन। क्या चिल्लर क्वेश्चन को इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? From tomorrow we'll be starting with inventory valuation, हाँ? मतलब समझ रहे हो ना? The remaining two questions you have to solve on your own. Let's check it out. A check of 1080 credited in passbook on 28th of March being dishonored is debited again in the passbook on 1st of April 2018. There is no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15th of April. Means this was the check deposited but not credited. है ना? This will neither come in reconciliation nor in the adjusted cash book till 31st March. Why? आपने बैंक में चेक जमा करवाया, आपने बैंक को डेबिट किया, बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया, बाद में चेक डिसऑनर हुआ, तब बैंक ने आपको 1 अप्रैल को वापस डेबिट किया, मतलब 31 मार्च को आपने डेबिट बैंक को क्रेडिट करके रखा हुआ है या नहीं? So therefore that is not a reason for difference. This will not come in your reconciliation statement at all. All right. Next, bankers had credited her account with rupees 2,800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not been entered in the cash books. CBOD, PBOD, ODOD. Bank has collected the interest, bank to OD has decreased. You have not yet decreased rate. So PB to CB, add rupees 2,800. Out of checks of rupees 20,500 paid in by Mrs. Rani in cash and by checks on 31st of March 2018, checks amounting to 7,500 were collected on 7th of April. So reason for difference is only 7,500 or not? CBOD, PBOD, ODOD, you have decreased the overdraft but the bank has not decreased it. So PB to CB less 7,500 and not 13,000. Why 7,500? You have paid into the bank, means check deposited or not? तुमने चेक डिपॉजिट कराया पर बैंक में क्रेडिट कब हुए? 7 अप्रैल को, मतलब बाकी 13,000 के तो 31 मार्च तक के क्रेडिट हो चुके थे ना. So reason for difference is only 7,500 or not. Accordingly, out of the checks amounting to 7,800 drawn by her on 27th of March 2018, a check of 2,500 was encashed on 3rd of April. So reason for difference again is only 2,500 or not. So CBOD, PBOD, ODOD, you have increased the overdraft, bank has not increased it. So PB to CB add 2,500. Correct hai? Banker seems to have given her wrong credit of rupees 500 paid in by her in account number 8765 and a wrong debit in respect of 300 against her account number 8765. So wrong credit and wrong debit, these are two independent statements, you are not supposed to adjust it. आपको दोनों अलग अलग लिखना जरूरी है. रॉन्ग क्रेडिट मतलब पैसा दिया, रॉन्ग डेबिट मतलब पैसा लिया. सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी. रॉन्ग क्रेडिट, बैंक ने बैलेंस कम, ओडी कम कर दिया, आपने ओडी कम नहीं किया, आप करोगे भी नहीं, बैंक की गलती है. पीबी टू सीबी एड 500 एंड सेकेंड वन पीबी टू सीबी लेस 300. Wrong debit will be written separately, wrong credit will be written separately.
A check of 1,000 entered in cash book but omitted to be banked. आपने कैश बुक पे रिकॉर्ड किया पर बैंक को दिया ही नहीं, ओमिटेड टू बी बैंक बोला है ना. सो सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी, आपने ओडी कम कर दिया, बैंक ने ओडी कम नहीं किया क्योंकि बैंक को तो चेक मिला ही नहीं ना. सो पीबी टू सीबी लेस ₹1,000. अरे हाँ या ना. A bill receivable of ₹5,200 previously discounted, discount ₹200 with the bank had been dishonored but the advice was received on 1st of April. Bill of exchange dishonored, तो डेबिट कितने का होगा, पूरे 5,200 का या सिर्फ 5,000 का या सिर्फ 200 का, 5,200 रुपए का. सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी, बैंक ने आपका ओडी 5,200 से बढ़ा दिया, आपने नहीं बढ़ाया. सो पीबी टू सीबी लेस 5,200. इज इट राइट? थर्ड रिपीट करिए. थर्ड केस में रानी ने 20,500 के चेक बैंक में जमा करवाए थे, में से 7,500 के चेक 7 अप्रैल को बैंक ने क्रेडिट किए. का मतलब बाकी 13,000 के तो 31 मार्च तक क्रेडिट हो चुके ना. सो रीजन फॉर डिफरेंस इज ओनली 7,500 एंड दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इन रिकंसिलिएशन. करेक्ट है? हाँ. A bill of 10,000 was retired paid by the bank under a rebate of 175, but the full amount of bill was credited in the bank column in cash book. बिल रिटायर करवाया मतलब बैंक ने आपके बिहाफ पे 9,825 रुपए पे कर दिए, 9,825 पे किया. अब बैंक ने 9,825 पे किया पर आपने बैंक को क्रेडिट कितने से किया, 10,000 से. सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी, you have increased the overdraft by 10,000. But the bank has increased only by 9,875 or not. Therefore, PB to CB add only 175. Is the point right? And the last one, check for ₹2,400 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by bank on 31st of March. Check deposited but not recorded in cash book. CBOD, PBOD, ODOD. बैंक ने आपका ओडी कम कर दिया, आपने ओडी कम नहीं किया. सो पीबी टू सीबी एड 2,400. Are these points clear for everyone? Did you people understand? Remaining 2 questions you have to complete on your own. We'll be sharing the answers tomorrow. That's it for the day. Thank you very much. Bye bye.